let's continue the back exercise. Question number 8. It's write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction. So first you have to write the chemical equation, then you have to balance it, and then also you have to tell what type of reaction is that. So let's do the first one. It's potassium bromide. Potassium bromide, KBr, plus barium iodide. Barium iodide. And the product so formed is potassium iodide, Ki, plus barium bromide, Ba, Br2. Okay, now balance it. The first one, potassium is 1, potassium is 1. Then barium is 1 here, barium also 1 here. Then bromine, bromine is 1, and here bromine is 2. So let's write here 2. Iodide here is 2, here, whereas here it is 1, so I will write it here 2. Fine. Now let's recheck the whole equation. Potassium, let me write here first, K, potassium is 2. And this side also it's 2. Then barium here is 1. Barium here also is 1. So these two are balanced. Next, let's check the bromine. Bromine here is 2. So Br is 2, and here also it's 2. 2 and 2. Now iodide here is 2, and here also it's 2. Fine. So this is the balanced chemical equation. Now what type of equation is this? What type of reaction is taking place here? If you see properly, you have here A, B, correct? Plus A, B. Sorry, here let's take C, D. So what's happening? See, interchanging, displacement is taking place. Correct? So this is double displacement. Double displacement reaction. Okay, let's move to B part. So zinc carbonate. Zinc carbonate is ZnCO3 plus zinc oxide gives, यहाँ पे एरो डालो, gives zinc oxide ZnO plus carbon dioxide gas, CO2. Okay, now balance the equation. Zinc is 1 and 1. Carbon is 1, carbon is 1. Oxygen here is 3, whereas here also 3. See, 1 is here and 2 is here. So this equation is balanced. Fine. Now look at the equation. We have a compound and it's getting what? ZnO plus CO2. You are getting two products here. It's getting, zinc carbonate is getting decomposed into A and B. तो ये कौन सा हो गया? This is decomposition reaction. Breakdown हो रहा है ना zinc carbonate का zinc oxide और carbon dioxide पे. Okay, let's see the C1 now. Hydrogen, that is H2, plus chlorine, that is Cl2. It's giving hydrogen chloride HCl. ये इक्वेशन तुमने बहुत बार की है चैप्टर में, राइट? तो चेक करो, इट्स हाइड्रोजन 2, यहाँ तो एक ही है, राइट डाउन 2, क्लोरीन 2, अभी 2 डाला तो 2 हो गई, करेक्ट? तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. नाउ वेरी सिंपल, 2 reactants are combining and forming only one single product. तो combine हो रहे हैं, तो it is combination reaction. ठीक है, चलो अब करते हैं लास्ट वन, दैट इज द D1. Magnesium Mg is reacting with hydrochloric acid.
Magnesium is reacting with hydrochloric acid, that is HCl. And what are the products so formed are magnesium chloride, NgCl2, plus hydrogen, H2. ठीक है? Now balance it. Ng is 1, Mg is 1. Chlorine is 1, chlorine here is 2. तो क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे. Now hydrogen कितना हो गया? 2. यहाँ already 2 है. So this is the balanced chemical equation. ठीक है? Okay. Now check the type of reaction is this. कौन सा reaction है ये? देखो MgH की जगह ले रहा है ना यहाँ पे, तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और क्यों हो रहा है? मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया. गॉट इट? ओके. Now let's move to the next question, number 9. Now let's see what's asked here. What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. Okay, first let's see exothermic reaction. Reactions in which heat is released along the formation of products. है ना? याद है चैप्टर में हमने किया था कि जहाँ हीट एग्जिट होती है रिएक्शन में, मतलब प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज हो रही है. Here is an example. Check. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो कभी भी आप कोई भी फ्यूल को बर्न करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट हीट. दिस सिंबल इज फॉर हीट. तो एनर्जी रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रही है. तो व्हेनेवर द हीट एनी टाइप ऑफ एनर्जी एंटर्स थ्रू द रिएक्टेंट साइड, हम बोलते हैं एंटर हुआ, तो एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब हुई है हीट. तो फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसमें हमने क्या किया? हीट दी, तो इट डीकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? ये वाली इक्वेशन याद है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी में भी हमने प्रॉपरली किया हुआ ये डिटेल में. तो यहाँ हमने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की. तो इट ब्रोक डाउन, डीकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज दिस AgCl. रिमेंबर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में दिस इज यूज्ड. तो इसमें क्या किया था? यहाँ पे सनलाइट था, तो एनर्जी इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, तो इट डीकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. ठीक है? फाइन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अब रेस्पिरेशन क्या है वी नो, ठीक है, लेकिन उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक? अभी अभी हमने किया यहाँ एक्सोथर्मिक. देखो ये रहा, ये सॉरी दिस इज एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट साइड में. करेक्ट? यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज हुई. तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट पहले बताओ व्हाट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन. तो ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. देन कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज कंबाइंस इन योर सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी. ठीक है ना? तो देखो ये था ग्लूकोज, और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ आपके सेल में. बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, तो उसमें जाके ये कंबाइन हुआ, और क्या रिलीज हुआ एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग द प्रोडक्ट साइड, है ना. रिलीज एग्जिट हुई, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सिंस इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द प्रोडक्ट्स. Therefore, respiration is considered as an exothermic reaction. Clear? Now, the question number 11. Why are decomposition reactions are called opposite to combination reaction? तो बहुत easy है. Combination reaction में हमने क्या पढ़ा था? कि we will have 2 or more reactants combining to form a single
प्रोडक्ट, ठीक है, तो कंबाइंड हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि वी विल हैव अ रिएक्टेंट, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये उल्टा है ना, ऑपोजिट एक दूसरे के, एक जगह कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक जगह पे डीकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दिस इज व्हाई इट्स ऑपोजिट। नाउ लेट्स सी फर्स्ट, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो वाटर का, वाटर में क्या होता है, H2 combines with O2, तो you will get a water molecule H2O। तो 2 सिंपल रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, है ना, बाद में इक्वेशन बैलेंस कर लो। और डीकम्पोजिशन में क्या हुआ, while in decomposition reaction involves breakdown of single reactant into 2 simpler products। तो यहाँ पे सेम इक्वेशन देखो, इजी है, सेम एग्जाम्पल ले लो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में किया है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करो, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने से इट ब्रेक्स डाउन इनटू H2 प्लस O2, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में। फाइन, ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो पहले तो decomposition reaction की definition लिखो। What is decomposition reaction? Involves breakdown of a single reactant into 2 or more simpler products। पता है ना, चलो फिर भी एक बार यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसने क्या कहा है कि एनर्जी लिखो सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ पे हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोवाइडेड टू डिकम्पोज अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल, तो यहाँ लगा दो ट्रायंगल, ऐसे लिख दो, यहाँ यू कैन ऑल्सो राइट हीट हियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट breaks down into calcium oxide plus carbon dioxide, ठीक है। तो decomposition reaction where heat is used to decompose a reactant is called thermal decomposition। next उन्होंने क्या कहा है, light, जहाँ पर लाइट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो ये दिस इज व्हाट AgCl, अगेन वही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला। अगर आप AgCl को सनलाइट में रखोगे, right here sunlight on the arrow, तो it will decompose into silver and chlorine। यहाँ एक क्वेश्चन आया था, याद है, why silver turns grey when kept in sunlight? That is because silver chloride breaks down into or decompose into silver and chlorine when kept in sunlight, and this kind of equations are called, reactions are called photolysis or photochemical decomposition। Now last one they are asking about when electricity is supplied. So electrolysis and that type of reaction is called electrolysis decomposition reaction, and that is of water. When you pass electricity through water, what will happen? It will break down into H2 and oxygen gas. Fine. So rest of the questions will complete in the next video. Bye.